Good morning to you all, dear friends. Today we shall discuss our chapter 10. The name of our chapter 10 is A Wise Lesson. About the chapter, this is a Jewish folk tale. Folk tales are stories which are passed down from one generation to another by word of mouth of elder persons. Example, grandparents. Now this is a Jewish मतलब कि जूस या यहूदी फ्लॉक टेल्स है, जो कि फ्लॉक टेल्स क्या होती है, जो कि दादाओं परदादा के द्वारा अपने बच्चों को सुनाई दी जाती है. So dear friends, let's start this chapter. Today we shall be moving in a bit of speed, so please listen and watch this video very carefully. In a town of a remote island, there lived a God-fearing man whose wife could not have children. One day, however, she became pregnant, and her husband, rejoicing in her heart at the glad tidings, said, "You will give birth to a son who will be the comfort of our souls and the delight of our hearts. I will educate him and bring him up well, and he shall inherit my good name and increase my renown." Now in this paragraph, we are being told that in a remote place, बहुत दूर दराज की बात है, 1 साल की बात है, कि एक गॉड फियरिंग, ईश्वर धर्मी या ईश्वर को स्वर के अनुसार जीने वाले दो मतलब दंपति थी. उनको कोई बच्चा नहीं था, पर इस पति की वाइफ एक दिन प्रेग्नेंट हुई और उसका हस्बैंड इस बात पर बहुत खुश हुआ और वह ऐसी बातें करने लग गया कि आप एक ऐसे बच्चे को जन्म दोगी, आप एक लड़के को जन्म दोगी और मैं उससे बहुत अच्छे से बड़ा करूंगा, उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और वह आगे जाके मेरा नाम रोशन करेगा. Thus spoke the happy potential father, but his wife replied, "You speak foolish words, for the future is unknown to you. How do you know that my childbirth is going to go well, that I shall give birth to a son and not a daughter, that the child is going to live long and that is going to be robust and healthy? You should not have spoken such idle words and boasted, but left everything to God, who controls our destinies. It may befall you as it once befall a certain dervish." ऐसी बातें उसका पति कर रहा था तो उसकी वाइफ क्या बोलती है कि आप मूर्खता वाली बात कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर भविष्य किसी ने भी नहीं देखा और आप ये कैसे कर सकते हो कि मैं एक लड़के को ही जन्म दूंगी. क्यों नहीं एक लड़की को भी मैं जन्म दे सकती हूँ. और आप ये कैसे कर सकते हो कि वो काफी अच्छी जिंदगी जिएगा, वो शरीर से तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा और ताकतवर होगा. आपको ऐसी फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए और बोस्ट और ऐसा सब कुछ दिखाना नहीं चाहिए, परंतु आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सारी चीजें भगवान पर छोड़ देना चाहिए. वो अपनी सारी बातें, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है और उसके हिसाब से होता है. वह जानता है ना कि अपन, नहीं तो आप इस डेरविश या इस भिखारी की तरह हो जाओगे. When her husband asked her what happened to that dervish, she told him the following tale. जब उसका हस्बैंड पूछता है कि what happened to this dervish, तो वह क्या बोलता है, वो उसकी पत्नी उससे एक कहानी सुनाती है. There was once a dervish in the service of a king. The king used to give him a piece of cake and a bowl of honey daily. The dervish used to eat the cake and put the honey into a jar, which he always
carries upon his head. Honey, however, in those days was very expensive. One day the dervish, noticing that his jar was nearly full, thought of the high price his honey would fetch in the market. तो ये डेरविश की कहानी से सुनाती है और बोलती है कि एक बार एक डेरविश था, भिखारी था, या फिर जो भिक्षा मांगता है उसे डेरविश कहते हैं। तो वह राजा के दरबार में रहता था और राजा उसे रोज एक केक का टुकड़ा और हनी देता था। तो केक के टुकड़े को वो खा जाता था और हनी को अपने पोट में भरता था। तो ऐसे दिन बीतेगा और उसका जो पोट है वो हनी से फुल हो गया और वह सपने देखने लगा कि मैं इस हनी को बाजार में बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा। I am going to sell my honey for a piece of gold and buy 10 sheep, all of which is going to give birth to lambs, so that in the course of 1 year I am going to have 20 sheep. और वह सोचता है कि मैं इस हनी को एक गोल्ड पीस से, सोने के टुकड़े या सोने के लिए बेचूंगा और उस सोने के टुकड़े से मैं कितनी शीप्स खरीदूंगा? 10 शीप्स। और वह शीप्स बच्चे देगी, लैम्स देंगी, बछड़े देगी और मेरे पास एक साल के अंदर 20 शीप्स हो जाएगी। देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टीडली इंक्रीज एंड इन 4 years आई शैल बी द ऑनर ऑफ 400 शीप्स। और बोलता है कि ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे नंबर बढ़ते जाएंगे और मैं 4 साल में कितनी शीप्स का मालिक हो जाऊंगा? 400। आई शैल देन बाय अ काउ एंड एन ऑक्स एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड। और उसके बाद बोलता है कि मैं एक गाय खरीदूंगा और एक बैल खरीदूंगा और जमीन का टुकड़ा खरीदूंगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू काउस द ऑक्स विल बी यूजफुल टू मी इन प्लाविंग माई लैंड वाइल द काउस विल प्रोवाइड मी विथ मिल्क। और बोलता है कि गाय बछड़े देगी और बुल जब बैल है वह मुझे खेती में मदद करेगा और गाय साथ ही साथ मुझे मिल्क भी प्रोवाइड करेगी। In 5 years time the number of my cattle will have increased considerably and I shall be possessor of great wealth। और बोलता है कि 5 साल के अंदर मेरी जो धन है वो कैटल्स वगैरह इंक्रीज होते जाएंगे और मैं बहुत चीजों का धनवान बन जाऊंगा। आई शैल देन बिल्ड मैग्निफिसेंट हाउस, एक्वायर स्लेव्स एंड मेड सर्वेंट्स एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमेन एंड नोबल डिसेंट। और बोलते हैं कि और मैं बहुत खूबसूरत घर बनाऊंगा और मेरे पास बहुत सर्वेंट होंगे, नौकरानियां होगी और मैं एक ब्यूटीफुल स्त्री से शादी करूंगा। शी विल बेयर मी अ सन, अ रोबस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड। और बोलता है कि और उससे मुझे एक लड़का उत्पन्न होगा जो कि ताकतवर और ब्यूटीफुल होगा। अ लकी स्टार, वेरी नोबल डिसेंट, shine at the moment of his birth and he will be happy and blessed and bring honor to my name after my death। और बोलते हैं कि एक स्टार जैसे, वो शाइनिंग स्टार जैसे स्टार खिलेगा जब उसका बर्थ होगा और वह बहुत खुश होगा और मेरी डेथ के बाद वो मेरा नाम रोशन करेगा या मेरा नाम की व्याख्या करेगा। Should he, however, refuse to obey me, I will beat him with this stick. Thus, and the dervish was so caught up in his daydream that he raised his stick, which hit the jar and broke it. The jar of honey, along with his daydream, was lost. Now, what happens? आगे बोलते कि अगर वो मेरा बच्चा मेरी बातें नहीं सुनेगा तो मैं उसे लकड़ी से मारूंगा। और ठीक वो इस सपने में खो जाता है और क्या करता है, अपनी लकड़ी उठाता है और उसी डे ड्रीम या दिन दहाड़े वाले सपने में अपनी लकड़ी उठाता है और किसको मार देता है? पोट को।
और वो पॉट टूट जाता है और उसका जो सपना था वो भी टूट जाता है। I have told you the story, continued the wife of the pious man, just to give you a lesson that it is not wise to speak things that are uncertain. और उसकी वाइफ उससे बोलती कि ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जो बातें अपने कंट्रोल में ना हो, जिस बात को अपन नहीं जानते, उन बातों को अपने को नहीं बोलना चाहिए और वह सब बातें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। Remember the words of King Solomon who said, "Do not boast yourself, you do not know what will happen to you next." और हमेशा सुलेमान के ये शब्द याद रखना कि अपने आप की तारीफ ना करे या अपने आप पर बोस्ट ना करे, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, परंतु आपको ये नहीं पता है कि आपके साथ भविष्य में क्या होगा, आपके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसलिए अपने आप की तारीफ या खुद के बारे में फालतू बातें नहीं करें जो कि आपको पता नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर 10 and by evening or afternoon I will be sending you question answers. Please complete it, and if you have any doubt you can WhatsApp me, and please check whether I have completed all the exercise of all the chapters that are coming in your exams, and if I haven't, please message me so that I may complete the exercise. Okay, thank you, take care, have a nice day.